Good afternoon, everyone. In our last lab, we have completed the practical 2, right? And I hope all of you have uploaded the practical 2 PDF file on our Google Classroom. If not, then upload it as soon as possible. Now, let's start with the practical 3. Is screen is visible? Quickly. Yes, okay, fine. Yes, till now, we have done this one. Practical 1, create table account, column name, data type and size. Column name, data type and size, and we have inserted this data, right? This is a simple table. But in this simple table, if we want to insert this one, it means if we want to duplicate it, we can do it. We can do it. आप डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है, आप ट्राई भी कर लेना। पहले अभी आप डुप्लीकेट 4-5 बार कर देना, then after if you want to display it once, then you can use the distinct keyword that we have done in a practical 2. But if you want to restrict it while we are inserting, then we can do it। जब आप इंसर्ट कर रहे हो तभी आपको डुप्लीकेट रो इंसर्ट नहीं करने देना है, then we can do it। For that, practical 3 is there। Constraints, integrity constraints we have discussed in unit 1। check constraint, primary key, foreign key, unique key, not null constraints, this many constraints we have discussed in detail, right? So now it's time to use this one। So in the practical 3, see here, bold and underline column name indicates the primary key, create a table account, and here it is the underline, it means the account number is the primary key, data type and size. Till now it is given. Now one more column is added, that is attributes, it means constraints. Primary key or first letter must start with A. It means we need to set this one on a account number. Second, name. On a name column we need to set the constraint, not null constraint we have to set. Similar way, CT balance and loan taken, right? In a CT, it's not null. In a balance greater than equals to 500, it means we need to check, it is the condition, right? In a balance and loan taken, both are the condition. While we are inserting, it will check the condition. If this condition is satisfied, then it will allow us to enter the it will allow us to insert the value, otherwise it will deny। We will check it in a demo session, right? For this one, first letter must start with A। We need to learn something, so that I am going to explain। Okay, till now all of you are doing this one। Select star from account where name is equals to Patel Jigar, right? But if I want to select star from account where name is equals to Patel Jigar, सो इट विल गिव दी पटेल जिगर। देखो यहाँ पे डुप्लीकेशन और ये मिल रहा है, ठीक है। सपोज इफ आई वांट टू सर्च अ नेम whose name start with P, then name is equals to P, no data found। It means if we want to search something from the particular column as a particular pattern, in particular pattern, then we can use it। just 1 minute। So for that, okay, if you want to search some pattern, like if you want to search those names who start with A, or if you want to search those names who ends with A, या फिर जिसके नाम में ए आ रहा है, कोई भी पैटर्न मैच करना है, तो उसके लिए आपको ये लाइक ऑपरेटर सीखना पड़ेगा। इट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। Like operator is used in a where clause to identify, to search, or to specify the pattern which you want to search in a particular column। So
you need to remember only this one, this two line. If you remember very well, then it will help you a lot. Will help you a lot. So अच्छे से ध्यान रखो क्योंकि ये दो important है. Now percentage sign. Percentage sign. Whenever you find the percentage sign in a like operator in a specified pattern, you can replace that percentage sign with 0, 1 or multiple character. It means any length. In short, any length. So whenever you find the percentage sign, you can replace that percentage sign with the 0 character, with the 1 character or many character. And underscore, it means it represents the single character. Length is fixed, 1. 1 underscore is equals to 1 character. Character कौन सा? कोई भी. Percentage में भी character कोई भी. Clear? Till now, all of you are clear? Okay. Select star from account where condition देनी है name, like is the operator, like किसके जैसा आपको सर्च करना है. फॉर एग्जाम्पल p परसेंटेज. इट मीन्स p से नाम जिसके स्टार्ट हो उसका नेम आपको सर्च करना है. यहाँ पे आपको ऐसे प्रेडिकेट मिलेगा. ठीक है, जितने p से स्टार्ट हो रहे हैं वो सब कुछ मिल गया. ठीक है, p से जितने स्टार्ट हो रहे हैं उतने. Here p percentage. Percentage, it means you can replace any number of character or any character. Now I am giving you few example. Whether it is valid or not, that you need to check. Let me give a no data found that I know. A percentage, small a percentage, it is case sensitive. Remember this one. It is case sensitive. A percentage, it means it will give the name of those students who start with the A or value, whatever. Can you give me the output of this? It means ये भूल जाओ. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट भूल जाओ. प्रेडिकेट का आंसर ही पूछ रहा हूँ. लाइक ए परसेंटेज. ए परसेंटेज में कौन कौन से नाम आ सकते हैं? क्विकली. ए से स्टार्ट हो ऐसे नेम. अंशु, अनुज, अनिकेत, अंकिता, अब्देली. राइट, गुड. राइट. सो ए परसेंटेज मैं उसका उल्टा कर रहा हूँ. उसका मतलब क्या होगा वो आपको मुझे बताना है. परसेंटेज ए इट मीन्स जल्दी से बताओ. Yes, Arshit, Aditya is the correct. Meena. Okay. Meena. You are directly saying the name. Okay. Percentage A, it means whose name ends with A. Tina, Meena, Aditya, all names not string from A. All names not, okay, not starting from A. वो लिखना जरूर नहीं है. Not starting from A नहीं. Ends with A ऐसे लिखना है. ठीक है, ends with A ऐसे बोलना है. It ends with A. Like Tina, Meena, Sita, Valodia, Chavda, Kalpana. These all are the possible names, right? Now next, A underscore. It means A underscore. It means underscore. It means it represent the single character. तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी होगी? क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे? ए बी
ए भी हो सकता है, ए आई, यस, ए आई, ए बी. First character must be a and second character anything, but total length is only two character, right? Only two character. Okay, good. ए आई, ए बी, ए सी, ए डी, ए कुछ भी आएगा, ठीक है. ए बी सी नहीं आएगा क्योंकि थ्री कैरेक्टर लॉन्ग हो गया, ठीक है. नाउ आई एम राइटिंग दिस वन, a underscore underscore, it means three character. First character a. If I write underscore a underscore, it means thing will be three character long and second character must be a. BAC, yes, BSC, BSC, कुछ भी. और HAR, paid, cat, CAT, right, good, good. Okay. What is the meaning of this predicate? Underscore a percentage. Underscore a percentage. What it means? First letter A. Wrong. Wrong, wrong, wrong. Arshit is right. Arshit is right. Rahul is right. इसका प्रेडिकेट क्या है वो आपको बोलना है. अंडरस्कोर ए परसेंटेज मतलब क्या हुआ? सेकंड कैरेक्टर मस्ट बी ए. सेकंड कैरेक्टर ऑफ एनी स्ट्रिंग मस्ट बी ए. पीछे तो कुछ भी हो, ठीक है, चलेगा. अर्षित है, फिर वैभव है, ठीक है, ये सब सेकंड कैरेक्टर में आएंगे, राइट. So this all about the predicate, right? Yes, one more is remaining. What do you mean by this one? Percentage A percentage. Percentage A percentage. It means कहीं पे भी कोई भी पोजीशन पे ए आना चाहिए आपके नाम में, ठीक है, कहीं पे भी. लाइक अब्देली, किताब, डुगर, अर्षित, कुमार, क्या है, वासु, बालोड़ी, नेविल नहीं आएगा, कल्पना, चावड़ा, कहीं पे भी ए आना चाहिए, ठीक है. सपोज मैं यहाँ पे ए बी लिख रहा हूँ तो क्या हुआ, आपके नाम में कहीं पे भी ए बी आना चाहिए, या फिर पहले आए या फिर लास्ट में आए या फिर बीच में आए, ठीक है. लाइक अब्देली, सो ए बी से स्टार्ट हो रहा है तो वैलिड है अब्देली, ठीक है. फिर किताब, गुड एग्जाम्पल आ गया हमारे हाथ में. किताब, किताब में KITAB आ रहा है तो भी वैलिड है, ठीक है. I hope all of you are getting. Do you have any query, any question? Then ask me right now. Good. Sir. Hello, sir. Hello. સર કેપિટલ ને સ્મોલ તો બે સેમ જ રહે ને? Now, as I told you, column name and table name are not case sensitive, but data are case sensitive. If I write here A, capital AB, and if I write here small ab, both are different, right? Both are different. चलो Okay, चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको.
पटेल जिगर हमारे पास है, तो मैं पी कैपिटल पी परसेंटेज लिख के रन करवा रहा हूँ। तो पटेल जिगर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल पी कर रहा हूँ, मिला नहीं मिला डेटा, ठीक है। एग्जैक्ट पैटर्न आपको चाहिए, डन। Okay, now in a practical one we have created the table like this. Create table account number varchar2 5 comma name varchar2. In a practical 3 we have to do with constraint. So पहले कॉलम में यहाँ पे प्राइमरी की सेट करनी है, तो ये यहाँ तक एज इट इज क्रिएट टेबल अकाउंट नंबर varchar2 5, देन एड प्राइमरी की ऐसे लिखेंगे तो प्राइमरी की सेट हो जाएगी। एडवांटेज ऑफ प्राइमरी की इज प्राइमरी की कैन नॉट बी नल एंड डुप्लीकेशन अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। डुप्लीकेशन अवॉइड हो जाएगा। सेकंड क्या है, कंडीशन में लिखा है फर्स्ट लेटर मस्ट स्टार्ट विथ ए। देयर आर मेनली टू मेथड। यू कैन डिफाइन कंस्ट्रेंट एट कॉलम लेवल, ये प्राइमरी की मैंने कॉलम लेवल पे लगा दिया, और यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट मैंने टेबल लेवल पे, इट मींस पीछे लिख दिया, इट डजंट मैटर। सो चेक कंस्ट्रेंट चेक अकाउंट नंबर लाइक ए परसेंटेज, ए से जितने स्टार्ट होंगे अकाउंट नंबर उसको ही एंटर करने की परमिशन देंगे, दूसरे को नहीं। तो दिस इज चेक कंस्ट्रेंट। दूसरा क्या है, नेम varchar2 30 नॉट नल कंस्ट्रेंट। तो नॉट नल इट मींस यू कैन नॉट कीप इट एज अ एम्प्टी। हाँ, स्पेस डालो, डॉट डालो, कॉमा डालो तो चलेगा, वो उसको एक कैरेक्टर काउंट करता है, लेकिन नल नहीं रख सकते। सिमिलर सिटी varchar2 20 नॉट नल कंस्ट्रेंट वी हैव सेट हियर। देन बैलेंस नंबर 10,2। अब देखो यहाँ पे बैलेंस में क्या लिखा है, बैलेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500, ठीक है। मैं यहाँ पे कंडीशन कोई नहीं दे रहा हूँ, चेक कंस्टेंट यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। कहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉलम लेवल पे नहीं, टेबल लेवल पे यहाँ पे मैंने लिख दिया चेक बैलेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500। इट मींस it will check whether the entered value is greater than equals to 500, then it will allow, otherwise it will deny, simple। एंड देन लोन टेकन स्टेटस, वो भी कॉलम लेवल पे नहीं, यहाँ पे चेक लोन टेकन इज इक्वल टू नो और लोन टेकन इज इक्वल टू यस। एक आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं क्या, एवरी टाइम यू नीड टू राइट कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू, यू कैन नॉट लाइक राइट लाइक दिस लोन टेकन इज इक्वल टू नो और यस, ऐसे नहीं लिख सकते। मैंने जो यहाँ पे दिखाया है उस तरह लिखना पड़ेगा। और इसका मतलब क्या हुआ, नो एंड यस कैपिटल में ही चलेगा, स्मॉल में भी नहीं चलेगा, और अदर देन दिस वैल्यू वो भी एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करने से पहले मुझे पुराना टेबल ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ड्रॉप टेबल अकाउंट, यहाँ पे हम रन कर रहे हैं, टेबल क्रिएटेड। अब डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब अकाउंट, क्या फर्क पड़ता है वो देख लेंगे। देखो अकाउंट नंबर में यहाँ प्राइमरी की में 1 आ गया, देखा प्राइमरी की इज 1, इट मींस प्राइमरी की सेट की, एंड प्राइमरी की नॉट नल होगी। यहाँ पे नलेबल में क्या लिखा है, डैश, इट मींस नॉट नल। फिर नेम एंड सिटी दोनों में नॉट नल कंस्ट्रेंट हमने ऐड किया है मैन्युअली, सो डैश। फिर बैलेंस एंड लोन टेकन, उसका मतलब क्या हुआ, टिक का मतलब वो नल हो सकती है, लोन टेकन भी नल हो सकता है, ठीक है। उसमें हमने क्या कंस्ट्रेंट डाला है, चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट यहाँ से नहीं मिलेगा, चेक कंस्ट्रेंट हमें कंडीशन यहाँ से की खबर पता चलेगा कि चेक कंस्ट्रेंट में क्या कंडीशन डाली है, क्लियर। अब हम 1 by 1 चेक करेंगे कि वट एवर वी आर इंसर्टिंग it is according to this one or not, right? So first we will do it 1 by 1, not all together, right? यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू सही दे रहे हैं, 1 by 1 कॉलम। ये कॉलम कौन सी है, अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर कैसी है, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या हो सकती है, नॉट नल नहीं हो सकती,
तो हम उल्टी वैल्यू डालेंगे और चेक करेंगे नल वैल्यू डाल के whether it is allowing or not. Yes, and not insert null into this one. It means null वैल्यू हम इंसर्ट नहीं कर सकते. It means प्राइमरी की हमारी सेट हो गई है. क्लियर. अब दूसरा कंस्ट्रेंट क्या चेक किया था हमने, ए से स्टार्ट हो ऐसा, ए से स्टार्ट हो ऐसा, मैं ई से स्टार्ट करवा रहा हूँ, फिर भी चेक कंस्टेंट वायोलेटेड, ए से ही करवा रहा हूँ स्मॉल से, क्योंकि हमने कंडीशन क्या दी, कैपिटल ए दिया है, राइट. सो ये आपको अलाउ नहीं करेगा. इट मीन्स डुप्लीकेशन की तो बात ही नहीं है. दूसरी बात कि पर्टिकुलर वैलिडेशन के साथ वो अंतर करने देगा. देखो 1 रो इंसर्टेड, ये एक रो इंसर्ट हो गई, मैं यही दूसरी बार रन करवा रहा हूँ, तो क्या आया, यूनिक कंस्टेंट वायोलेटेड. इट मीन्स प्राइमरी की यूनिक होनी चाहिए और आप दूसरी बार उसको ऐड करवा रहे हैं. इट मीन्स डुप्लीकेशन नहीं है. प्रैक्टिकल 1 में डुप्लीकेशन अलाउ करता था क्योंकि कंस्टेंट हमने सेट नहीं किया था. राइट नाउ इट इज नॉट अलाउइंग अस. आर यू गेटिंग? Are you getting? तो ये एडवांटेज हो गया डीबीएमएस का, डेटाबेस का, क्योंकि हमने इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट सेट किया है. इंटीग्रिटी सेट करने से नहीं होगा. सपोज मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दूँ तो अलाउ करेगा, क्योंकि A002 इज द डिफरेंट वैल्यू, A001 से डिफरेंट है. नाउ अब दूसरी कॉलम की बारी. दूसरी कॉलम क्या थी, नेम पे हमने कौन सा कंस्टेंट लगाया था, नॉट नल. इट मींस इसको हम नल नहीं रख सकते. सो उल्टा करके ट्राई करते, नल करके, यस कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू दिस, क्योंकि नॉट नल कंस्टेंट्स हमने डाला है. तो क्या डाल सकते हैं हम, सपोज यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा ब्लैंक रख के जाने दे सकते हैं, नहीं, ये भी नॉट नल ही है. सपोज यहाँ पे स्पेस कर रहा हूँ तो अलाउ करेगा, क्योंकि स्पेस को वो स्पेशल कैरेक्टर काउंट कर रहा है. क्लियर. सो दिस इज सेकंड कॉलम. थर्ड कॉलम पे भी ट्राई करते हैं, चेक करते हैं नल करके, क्योंकि थर्ड में भी सेम था, सिटी में भी कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यूज हो गया. अब यहाँ पे बैलेंस पे क्या था, बैलेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500, हम 50 डाल के चेक कर रहे हैं. चेक कंस्टेंट वायोलेटेड. इट मींस अपने चेक कंस्टेंट यहाँ पे ऐड किया है और उसका कंस्टेंट कंडीशन वायोलेट हो रहा है. सो यू आर नॉट अलाउड टू इंसर्ट दिस रो. समझ में आ रहा है? सो दिस इज चेक कंस्टेंट. टिल नाउ प्राइमरी की नॉट नल में दूसरी एरर आ रही थी, नॉट नल की. ये चेक कंस्टेंट की. सपोज यहाँ पे मैं 49 करूंगा तो भी अलाउ नहीं करेगा. Whenever I insert this 500, it will allow, or even 501. Okay, A003 से मुझे यूनिक का प्रॉब्लम. 500 हो गया, 500 से ग्रेटर करो तो भी चलेगा. सो ये कंस्टेंट कौन सा हुआ, चेक कंस्टेंट. लास्ट वन वो भी चेक कंस्टेंट है. चेक कंस्टेंट में क्या था, इसको नल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, वो चेक करना था. बैलेंस और लोन टेकन दोनों में. पहले मैं यहाँ पर यस स्मॉल कर देता हूँ, वाई कैपिटल ई स्मॉल. चेक कंस्टेंट वायोलेटेड, नो स्मॉल. चेक कंस्टेंट वायोलेटेड अदर देन नो और यस. वैल्यू टू लार्ज वो भी मना. चेक कंस्टेंट वायोलेटेड, क्योंकि नो और यस ही होना चाहिए. ठीक है. अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नल, तो वो अलाउ करेगा, क्योंकि बैलेंस और लोन टेकन नल हो सकती है. ठीक है. सो 1 रो इंसर्टेड, उसकी जगह हम डालेंगे यहाँ पे हम कैपिटल YES डाल देते हैं तो इंसर्ट हो जाएगी रो. क्लियर. सो बाय दिस वे यू कैन चेक ऑल द कंस्ट्रेंट्स. डू यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट?
Okay. Now one small concept is remaining. ये हो गया प्राइमरी की. अब एक ही कंस्टेंट बाकी रहा, क्या? फॉरेन की का. तो फॉरेन की आप कैसे डाल सकते हो? वो लोन टेबल में आएगा. क्रिएट टेबल लोन, लोन नंबर वेरके 25 प्राइमरी की चेक कंस्टेंट्स. यहाँ पे देखो अकाउंट टेबल में हमने दोनों अलग अलग किया था, प्राइमरी की कॉलम लेवल पे और चेक अकाउंट नंबर लाइक ए परसेंटेज लास्ट में दिया था. आप दोनों साथ में भी इस तरह दे सकते हो, ठीक है. नाउ अकाउंट नंबर वेरके 25 रेफरेंस अकाउंट नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन की. फॉरेन की का मतलब क्या? प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज टेकन इन अनदर टेबल, देन इट इज फॉरेन की. तो हम अकाउंट टेबल की प्राइमरी की ले रहे हैं अकाउंट नंबर. कंडीशन इज अप्लाइड कि वो प्राइमरी की होनी चाहिए. सो अकाउंट नंबर इज द प्राइमरी की इन अकाउंट टेबल. So here in this table account number where to 5 references का स्पेलिंग सही लिखना. रेफरेंसेस का मतलब क्या है? वी आर रिफरिंग टू व्हाट? अकाउंट टेबल एंड अकाउंट नंबर कॉलम. इसका मतलब अकाउंट टेबल की अकाउंट नंबर प्राइमरी की जो है अकाउंट नंबर, उसको हम रिफर कर रहे हैं. सो दिस इज योर फॉरेन की. दिस इज योर फॉरेन की. इतना ही न्यू है. इसकी सिंटेक्स में आपको पेस्ट कर दे रहा हूँ फॉरेन की के लिए, ठीक है. बाकी जो एक अकाउंट का जो है वो आपके रेफरेंस के लिए चैट में पेस्ट कर रहा हूँ. क्लियर? बाकी देखो सब कुछ ऐसा ही है. लोन अमाउंट, नोटनल कंस्ट्रेंट, इंटरेस्ट रेट, नोटनल कंस्ट्रेंट, लोन डेट, डेट. हाँ, ये रहा. लोन डेट में ब्लैंक है. ब्लैंक का मतलब क्या? कुछ कंस्ट्रेंट लगाना ही नहीं है. क्लियर? कुछ कंस्ट्रेंट लगाना नहीं है. ब्लैंक का मतलब ये है. सो रिमेनिंग लोन 10,2 चेक रिमेनिंग लोन लेस देन चेक कंस्टेंट हो गया. सो बाय दिस वे you need to complete the 4 tables: account, loan, installment and transaction. Everything is given to you. सब कुछ दिया है. अब your today's task. First, all of you need to drop all 4 tables: account, installment, loan, transaction. चारों टेबल डिलीट करो. फिर अकाउंट टेबल बनाओ, उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करो. देन आफ्टर गो फॉर द लोन टेबल. लोन टेबल में कंस्टेंट्स के साथ लोन टेबल क्रिएट करो और उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करो. देन ट्रांजैक्शन एंड देन इंस्टॉलमेंट. दिस इज योर टुडेस टास्क. डन? डू यू हैव एनी क्वेरी एंड डाउट? यू कैन आस्क. That's it from my side for today. So from next lab, we will perform the queries for practical 3. For that, you need to learn the few operators that I will explain in a next lab. So your today's task, before coming to next lab, ये चारों table with data insertion हो जाना चाहिए. This is your task. Do you have any query, any doubt? Then you can ask me. No query? That's good.